So after the discussion of quartiles, octiles, deciles, and percentiles, which are known as partition values, today we will discuss that how to determine the partition values, such as median graphically. So how these partition values, but I'm taking the example of the median over here. Sometimes in the examination, the question is generally to be asked on this. So let us discuss first of all what are the different practical steps which are involved. First of all, we have learned in the previous lectures that how the series is to be converted into less than and more than series, and the application of that is made when we determine the partition values graphically. So first of all, the step number one is calculate less than and more than values. So data is given to you and you have to convert it into less than and more than values. Now take the variables on the x-axis and frequencies on y-axis. Draw less than ogive curve and more than ogive curve. And locate the point of intersection of these two curves and draw a perpendicular from this point on x-axis. And in the last, locate the point where this perpendicular touches the x-axis. This point gives the value of the median. Let us apply all the steps. Now suppose this is the case study. Marks are given to you 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. And the number of students are 10, 20, 30, 50, 40 and 30. Okay. So now let us convert it into less than series and more than series. So in case of the less than series, as we discussed, that you have to take the highest amount of the class. And now 0 to 10, it means 10, 20, 30, 40, 50, 60. That is the upper limits of this class. So for the less than series, as we have learnt, that 10, 20, 30, 40, 50, 60. That is the upper limit. Now the number of students, as we go on addition of that, 10 plus 20 is equal to 30, 30 plus 30 is equal to 60, 60 plus 50 is equal to 110 and 110. That is a cumulative frequency. In case of marks more than, we generally take the lower limit of the class. So lower limit of the class is 0, 10, 20, 30, 40 and 50. Now the number of students, naturally we took it in the reverse order. So 180, then minus 10 is equal to 170, minus 20 is equal to 150, minus 30 is equal to 120, minus 50 is equal to 70, and minus 40 is equal to 30, and 30 out of 30 is divided, that is to be called here as a 0. Now, as we discussed that on O axis, we took marks, and on OY axis, मैं x एक्सिस और y एक्सिस x लिखना भूल गया हूँ. तो जो आपका हॉरिजेंटल है वो x एक्सिस होता है और जो वर्टिकल होता है वो y एक्सिस होता है. अब यहाँ पे से देखिए आप 0 से 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 यही मार्क्स थे हमारे, और y एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए जो कि 180 तक हैं. अब हमने फिगर्स पुट करी कि लेस देन 10 है तो 10 के सामने कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 है तो वो क्रॉस हो जाएगा. उसी तरह से 20 का 30. इस तरह से हमने क्या किया कि ये लेस देन कर्व, जो लेस देन सीरीज़ को जब हमने प्लॉट किया ग्राफ के ऊपर तो उससे आ जाएगी हमारे पास लेस देन कर्व. उस तरह से जब हमने मोर देन कर्व को प्लॉट किया तो हमारे पास मोर देन सीरीज़ को प्लॉट किया तो हमारे पास मोर देन कर्व आ गया. तो इस तरह से हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये जो कर्व बने इसको बोलते हैं हम ऑजाइव कर्व्स. तो एक हमारा लेस देन ऑजाइव कर्व बन गया और दूसरा हमारा मोर देन ऑजाइव कर्व बन गया. अब आपने क्या करना है, लोकेट द पॉइंट. अब जहां पे ये दोनों लेस देन और मोर देन कर्व इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को देखना है और वहां से एक परपेंडिकुलर नीचे को डालना है. अब जो परपेंडिकुलर है जहां पे वो ओ एक्सिस सीरीज को टच करेगा वो वाला पॉइंट जो है मीडियन होगा. अब देखिए हमने जहाँ पे पॉइंट ये इंटरसेक्ट किया वहाँ से नीचे को पॉइंट ड्रॉ किया तो वो 30 और 40 के बीच में आ रहा है. जब 30 और 40 के बीच में तकरीबन वो 36 के करीब आ रहा है. तो इस तरह से क्या है कि हम
मीडियन की कैलकुलेशन ग्राफिकली भी कर सकते हैं। देखिए इसी की ग्राफ के हेल्प से भी, अगर मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं, देखिए तो अब आप, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने एक असाइनमेंट करनी है कि लोकेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर बिटवीन 20 एंड 45। 20 और 45 के बीच में जिनके मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ये जो आपने जो असाइनमेंट अटेम्प्ट करनी है ये लेस देन कर्व से होगी। तो आप लेस देन कर्व से 45 जहाँ मार्क्स हैं उससे ड्रॉ करिए और वो अपने आप बता देगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उस तरह से 20 से ड्रॉ करिए, आपको बता देगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और दोनों के बीच में 20 से 40 तक जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बस आप स्टूडेंट्स जो आपके 45 मार्क्स के सामने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे और 20 के सामने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे उनके बीच का डिफरेंस देख लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर फॉर इट। सो दिस इज असाइनमेंट फॉर यू। ये देखिए अब हमने मीडियन की कैलकुलेशन करी, तो उसी के बेस के ऊपर देखिए अब हम, अगर हमने क्वार्टाइल के ऊपर लगाना है, परसेंटाइल पे लगाना है, डिसाइल पे लगाना है, तो ये देखिए लेस देन क्यूमुलेटिव कर्व आ गया, मोर देन क्यूमुलेटिव कर्व आ गया, इधर हमारी फ्रिक्वेंसी आ गई। अब n/2 तो क्या आ जाता है, मीडियन पे आ जाता है। n/4 किसके ऊपर आता है, क्वार्टाइल के ऊपर आता है। और 3n/4 किसके ऊपर, क्वार्टाइल 3 के ऊपर आता है। तो आप कोई भी जो कर्व हैं उनके ऊपर जहाँ भी ये पॉइंट्स टच करते हैं वहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट अप्लाइंग द फार्मूला दैट ग्राफिकली हाउ द कैलकुलेशंस आर टू बी मेड। अब आते हैं कि मेरिट्स ऑफ मीडियन। तो हमने केस स्टडी भी डिस्कस करी। तो हमने देखा कि हम घर खरीदने चले थे और अल्टीमेटली क्या हुआ कि चाहे वो 2,75,000 रुपीज़ का एक पेंट हाउस था और उसकी वजह से जो था वो मीडियन की हमारा जो मीन था वो गड़बड़ कर गया और हमारे बजट से बाहर चल गया, जिसका सोल्यूशन हमें किसने दिया, मीडियन दिया। तो हमारा फर्स्ट मेरिट बन जाता है कि मीडियन इज़ नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज। सेकेंड वन इज इट इज़ मोर सुटेबल एवरेज for dealing with qualitative data, that is where ranks are given। तो जहाँ पे ब्यूटी है, ऑनेस्टी है, these for the calculation of this I think median is the best। it can be determined by graphically, वो अभी हमने आपसे शेयर किया। limitations of medians are it is not based on all the items of series। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो मीन था हमारा वो वहाँ तो हम सारी वैल्यूज़ को लेते थे, लेकिन मीडियन में हम सिर्फ क्या लेते हैं, बीच वाली आइटम्स लेते हैं, चाहे आपका ऑड है, इवन है, इट मीन्स वी इग्नोर अदर आइटम्स। इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, क्योंकि आपने देखा मीन का तो हमने क्या कैलकुलेट किया था, वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन से हमने फर्दर फार्मूला जो कैलकुलेशन करी थी उसी के ऊपर हमने फर्दर उसकी एक्सटेंशन की थी जैसे। लेकिन आपने अभी हमने जो डिस्कशन करी, कभी हमने कंबाइंड मीडियन की बात करी नहीं करी। So it is not capable of algebraic treatment because its formula cannot be extended to calculate the combined median of two or more related groups, which we did in case of the calculation of the weighted mean. Now let us move towards the mode. So now we have discussed mean, we have discussed median। median के बाद हम चले गए थे partition value, quartile, percentile, deciles। और अब हमारे पास अगर हम फर्स्ट उस पे जाएं तो हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वन इज मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का थर्ड वन इज दैट इज ए मोड। अगर मैं मोड को बोलूं तो मोड होता है फैशन, ट्रेंड जिसको बोल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आजकल आप बोले कि कोई भी आइटम जो है वो ट्रेंड में है, तो वो ट्रेंड जो है अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ट्रेंड जो होता है वही मोड बन जाता है, उसी को हम मोड बोलते हैं। तो ट्रेंड क्या मतलब होता है, ट्रेंड का मतलब होता है जिस जहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या जो वैल्यू है वो कॉन्सेंट्रेट कर रही है, मोस्ट हैवीली कॉन्सेंट्रेट कर रही है, उसके अराउंड घूम रही है। क्लियर है। तो अब आपके पास अगर मान लीजिए कि कोई शूज़ हैं, तो अगर बहुत सारे लोग जो हैं वो उन शूज़ को प्रेफर कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं ट्रेंड आ गया जी, फैशन आ गया जी। तो बस उसी को हम मोड बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज। देखिए मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मोड है क्या, इट इज़ ए मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। मोड क्या चीज़ होती है, वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट ऑफन
और वैल्यू क्या होती है, मोड क्या होता है, विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़, जो कि हमारा मीडियन में भी था। एंड यूज्ड फॉर आइदर न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल डेटा, दोनों डेटा हमारे पास हैं। एंड देयर मे बी नो मोड और सेवरल मोड्स, वो बात हम अब करेंगे आपके साथ। देखिए, जहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन का वन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके पास अगर एक ही मोड है, एक मोड का मतलब है, आप जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे जो 9 है उसमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी है, 3 है, बाकी क्या है 1 1 2 1 3 1 2, इसका मतलब ये जो 9 है, दिस इज टू बी कॉल्ड हियर एज वन मोड। और अगर आप आगे नेक्स्ट आइटम्स देखें तो यहाँ पे सारी आइटम्स क्या हैं, सेम है, 1 1 1 1 1, चाहे 0 1 2 3 4 5 6 है, तो इसको बोलते हैं हम देयर इज नो मोड। इसके अलावा में मैं एक और आपको बात बता दूंगा, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन में 2 मोड्स हैं तो हम उस 2 मोड्स को भी हम क्या बोलते हैं, बायो मॉडल बोलते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, टेक्निकली एक होता है यूनी मॉडल, यूनी मॉडल का मतलब जहां 1 मोड होता है, एक होता है बाय मॉडल जहां पे आपके पास 2 मोड्स होते हैं, एक होता है मल्टी मॉडल जहां पे मोर देन 2 मोड्स होते हैं। और जो मोड की जो कैलकुलेशन है वो हम तीनों उसमें करते हैं, अनग्रुप डेटा यानी कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एज वेल एज कंटिन्यूअस सीरीज में भी कैलकुलेशंस करते हैं। जनरली जहां पे हमारे पास एक से ज़्यादा मोड होते हैं हम उसको इल डिफाइंड डेटा बोलते हैं, इसका मतलब वो गलत है। सो व्हाट इज अ मोड, इसकी बात, सो द मोस्ट फ्रिक्वेंट स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन, जो अभी हमने लर्न किया, दैट इज टू बी कॉल्ड हियर एज ए मोड, जिसको हमने फैशन बोला। ए डिस्ट्रीब्यूशन वेयर अ सिंगल स्कोर इज मोस्ट फ्रिक्वेंट हैज वन मोड एंड इज कॉल्ड यूनिमॉडल, यही बताया हमने आपको। A distribution that consists of only one of each score has n models. When there are ties for the most frequent score, the distribution is bimodal. मैंने अभी आपसे बात करी, जब दो मोड हो जाएंगे तो टाई हो जाएगी तो उसको हम बाई मॉडल बोलते हैं। और इफ 2 scores ties और मल्टी मॉडल इफ मोर देन 2 scores ties, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, मल्टी मॉडल बोलते हैं। तो यूनी मॉडल, बाई मॉडल एंड मल्टी मॉडल, 3 बातें हमने डिस्कस कर ली। तो अभी हम आपसे शेयर कर रहे थे कि जो कैलकुलेशन है वो अनग्रुप डेटा यानी कि इंडिविजुअल सीरीज और ग्रुप डेटा, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज की कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। अब सिंपल है, जैसे है कि कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स, 20 30 31 32 25 25 31 फिर 30 एंड 32। अब आपने इसको क्या करना है, इसमें जो स्टेप होता है वो हमने काउंट करना है, काउंट द नंबर्स ऑफ टाइम्स ऑफ वेरियस वैल्यू ऑफ द सीरीज रिपीट देमसेल्व्स। अब देखो इसमें से कौन सी ऐसी सीरीज हैं, ये नंबर है जो कि सीरीज में रिपीट कर रहा है। अब देखो 20 में चलें, अगर 20 नहीं रिपीट कर रहा है, ठीक है, उसके बाद 30 पे चलें, 30, यस 30 क्या हो रहा है, एक बार आ रहा है फिर 2 बार आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर आप बोलें 30, उसके बाद 31, हाँ 31 भी हमारे पास क्या हो रहा है जी, रिपीट कर रहा है, 32 भी रिपीट कर रहा है। अच्छा, लेकिन 30 अगर आप देखें तो 1 2 और 3 टाइम्स आपके पास आ रहा है, ठीक है जी, 3 टाइम्स आ रहा है ना आपके पास। तो अब आपने क्या करना है, उसको क्या करना है, साइज ऑफ द आइटम और नंबर ऑफ द टाइम्स इट अकर्स, ये टेबल बनाना है, जो मैंने नहीं बनाया, ये आपके लिए रखा मैंने। तो साइज ऑफ आइटम में आप देखिए कौन कौन सी हैं, एक 20 है, 20 से ज़्यादा कौन सी है, 25 है, 25 के बाद कौन सी है, 30 है, 30 के बाद 31 है और फिर 32 है। अब देखिए 20 कितने टाइम हो रही है, अब आपने उस कॉलम में लिखना है 21 टाइम, 25 2 टाइम, 30 3 टाइम्स, 31 2 टाइम, 32 2 टाइम्स, टोटल 10 हो गए। तो अब हमारे पास कंक्लूजन क्या हो गया, सिंस द आइटम 30 अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितना हो गया, 3, हेंस द मॉडल मार्क्स आर 30। तो मॉडल मोड को हम का जो सिंबल होता है वो Z होता है, ठीक है जी। तो कैसे हम मोड की कैलकुलेशन करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, वो भी अभी हमने सीख लिया।
अच्छा, मोड जो है हमारे पास, अगर डिस्क्रीट सीरीज आ जाए तो डिस्क्रीट सीरीज में सबसे सिंपल है। वो सबसे सिंपल क्या होगा, क्योंकि आपके पास डेटा दे रखा होगा और नंबर ऑफ टाइम्स इट अक्कर्स दे रखा होगा, जो कि हमने पीछे वाले न्यूमेरिकल में किया। तो आपने तो वहाँ पे सिर्फ कौन सा मेथड लगाना है, इंस्पेक्शन मेथड, यानी कि बस आपने इंस्पेक्शन करनी है कि कौन सी आइटम जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी वही आपका मोड होगा। तो सबसे सिंपल किस में होगा जी, डिस्क्रीट सीरीज में होगा। इसलिए अब हम चलते हैं मोड ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज में। देखिए Z, और इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज में ये होता है। तो L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है? तो Z क्या होता है, मोड होता है। L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मोड क्लास। F0 होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास, और F1 फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F2 फ्रिक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास, और C होता है क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। चलो इसको आपको सिखाते हैं एक। तो ये हमारा एक फार्मूला होगा। अब क्या होता है, ये प्री मॉडल क्लास होती है, मॉडल क्लास क्या होती है, पोस्ट मॉडल क्लास क्या होती है, और C क्लास इंटरवल आपको पता है, उसकी बात करते हैं। देखिए ये है कैलकुलेशन ऑफ मोड continuous series. From the following data calculate mode. Marks are 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. And number of students are 10, 20, 30, 50, 40 and 30. Okay. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको मार्क्स में, तो 0 to 10, 20, 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60, और उसके बाद हमने इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हमने देख लिया। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो F क्या होता है जी, F1 पे जाना होता है, यहाँ F0 पे नहीं होता। F1 का मतलब है आपने इंस्पेक्शन करनी है, इंस्पेक्शन करके आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है। तो देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी क्या है, 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके सबके मार्क्स जो है 30 to 40, तो मॉड क्लास क्या होगी 30 to 40, इसीलिए 50 क्या बन गया जी आपका F1 बन गया। ठीक है जी। उससे पीछे वाला, जो पीछे वाला होता है उसको हम बोलते हैं प्री मॉडल क्लास, इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक हो गया जी। प्री मॉडल का मतलब उसके पीछे, प्रीसीडिंग। और जो पोस्ट मॉडल होता है उसको बोलते हैं सक्सीडिंग। तो आपने F1 दे करके फिर जो पीछे वाला मॉड क्लास होगी, जो फ्रिक्वेंसी होगी उसको F0 बोलेंगे, जो आगे वाली फ्रिक्वेंसी होगी उसको F2 बोलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, मैं अब आपके सामने दो क्वेश्चंस रखता हूं यहां पे। मान लेता हूं ये जो 50 है ये 10 की जगह होता है। 50 कहां पे होता, 10 की जगह होता, और 10 जो है वो 50 की जगह होता। तो अब बताओ F1 क्या होता। F1 तो होता जी 50 और वो 0 to 10 की जगह होता। तो फिर F0 कौन होता, तो F0 से पीछे तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप नोट कर सकते हैं, इफ मॉडल क्लास इज द फर्स्ट क्लास, पहली क्लास अगर हो तो F0 इज टेकन एज 0। अच्छा, अब दूसरा एक चांस ले लेते हैं। अगर मान लीजिए 50 जो है किसकी जगह होता, 50 to 60 के सामने का जो 30 है वहाँ होता, तो क्या होता, तो जी F0 तो 40 होता, F2 मिसिंग है। अगर F2 मिसिंग है तो यहाँ भी आपने क्या करना, तो ये दूसरा आपका पॉइंट आ गया, इफ मॉडल क्लास इज लास्ट क्लास तो F2 इज टेकन एज 0। ठीक हो गया जी। तो और मॉडल क्लास कौन सी, मॉडल क्लास जिसके सामने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है। तो अब हमें L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कौन सी हुई जी 30 to 40, तो 30 और 40 का L कौन सा हुआ 30 हो गया। आपके सामने आ गया F1 कितना हो गया जी 50, F0 कितना हो गया 30, F2 कितना हो गया 40, I कितना हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस 0 to 10 यानी कि 10। तो मुझे लगता है कि सारी आइटम्स हमारे पास क्या हो गई जी, अवेलेबल होगी। अगर अवेलेबल होगी तो अब हमने फार्मूला में उसको पुट करना है। तो Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। तो अभी हमने देखा कि लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास कितनी थी 30, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1 कितना था 50, उसके बाद F0 फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास पीछे वाली क्लास कितना था 30, उसके बाद 2 इंटू
F1 कितना है हमारा 50 है, माइनस F0 कितना है 30 है, और F2 कितना था पोस्ट मॉडल क्लास दैट वाज 40 एंड मल्टीप्लाइड बाई C। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 30 प्लस ये क्या इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 6.667। तो इस तरह से हमारे पास जो मोड आ गया हमारा 36.667 हमारे पास कैलकुलेशन आ गई। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि ग्राफ को हम ग्राफिकली भी हम मोड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास ग्राफ की जो कैलकुलेशन होती है उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, अब इसी क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आप अप्लाई करके देखें तो वी कैन अप्लाई। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर वेरिएबल कहाँ लेते हैं जी, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब तो आपको एक्स नज़र आ रहा होगा जो मेरे से पहले मिस हो गया था, और वाई के ऊपर हमारे पास क्या आ जाती है, फ्रिक्वेंसी आ जाती है, तो हमने यहाँ फ्रिक्वेंसी कहती है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, हिस्टोग्राम बनाना होता है। अब आपने क्या किया, हमने क्या किया, 0 to 10 कितनी फ्रिक्वेंसी थी, 10 थी, तो हमने वो ट्राइंगल बना दी, सॉरी रेक्टेंगल बना दी। उस तरह से हमने ये रेक्टेंगल्स बना दी, इसको हम हिस्टोग्राम्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास हिस्टोग्राम्स आ गए तो जो सबसे बड़ी इमारत होगी वही क्या होगी, मॉडल क्लास होगी। ये मैं आपको बताऊँ तो ये आपको यहाँ पे इमारतें बनानी पड़ती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें। अच्छा, अब आपके पास क्या हुआ, जो इमारत बन गई ना, एक इमारत जो है वो 20 to 30 के है, और एक इमारत आपकी 40 to 50। तो हमारे पास तीन जो इमारतें बनी हैं उनको हम बोलते हैं रेक्टेंगल्स। ठीक है। तो आपने अब क्या हुआ, जब रेक्टेंगल्स बनेंगी तो अब आपने एक आपकी कौन सी होगी, एक लेफ्ट हो गई और एक होगी आपकी राइट हो गई। आपने क्या करना है कि जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास हमारी कौन सी है, 30 to 40 है। तो जो 30 to 40 की जो मॉडल क्लास है, ठीक है, उसका जो लेफ्ट कॉर्नर है, ठीक है जी, लेफ्ट कॉर्नर, और वो जो सक्सीडिंग है यानी कि 40 to 50 वाली इमारत है, क्लियर होगी जी बात, वहां की जो सक्सीडिंग रेक्टेंगल है वहां से आपने वहां तक की एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको हमने ब्लू लाइन किया। उसी तरह से आपने जो मॉडल क्लास है हमारा, उसका जो राइट कॉर्नर है, उस राइट कॉर्नर को किसके साथ मिलाना है, प्रीसीडिंग रेक्टेंगल की कॉर्नर के साथ मिलाना है जो हमारा रेड है। तो इस तरह से जब हम दोनों लाइनों को ड्रॉ कर देंगे तो अब हम आपके पास एक पॉइंट आएगा, और वो पॉइंट कौन सा होगा, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। और जब इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ से लाइन, तो वहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर नीचे को खींचना है जो एक्स एक्सिस की तरफ आ जाएगा, जो कि हमने ग्रीन कलर से यहाँ पे खींचा हुआ है। और वो जाकर के नीचे कहाँ है, 30 to 40 के बीच में, यानी कि 36.667 के करीब जो है वो उसकी कैलकुलेशन हो रही है। तो इस तरह से हम मोड की जो कैलकुलेशन है वो ग्राफिकली भी कर सकते हैं। तो व्हाट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, क्योंकि ये वाला जो फार्मूला हम लगाते हैं ये लगाते हैं इल डिफाइंड मोड में। जब हमारे पास इल डिफाइंड मोड होता है, यानी कि एक से ज़्यादा अगर मोड आ जाए आपके पास, तो हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है वो कहता है द डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन इज अबाउट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड द मोड। मीन और मोड के बीच का जो डिफरेंस होता है उसका जो 1/3 डिफरेंस होता है वो मीडियन के पास होता है। तो इसी कॉनोटेशन के ऊपर अब हम फार्मूला बनाते हैं। लो जी, तो कार्ल पियर्सन ने इसको कैसे किया, मीन माइनस मोड, देखो डिफरेंस बोला किसका होगा, मीन माइनस मीडियन का 1/3 होगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1/3 होगा। तो इसका मतलब मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मोड। लेकिन मोड इज इक्वल टू ये वाला जो फार्मूला है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बस आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ज़्यादातर इसी की एप्लीकेशन होती है, लेकिन हमने आपको बताया कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन कैसे कैलकुलेट होता है, वो कार्ल पियर्सन ने इसको एक्सप्रेस किया है। तो इससे क्या होगा कि आप कभी नहीं भूलोगे कि कैसे कैलकुलेशंस की जाती है। तो किसी भी तरह का, मान लीजिए मीन आपके पास दे रखा है, मीडियन दे रखा है, तो मोड कैलकुलेशन करना है, मोड दे रखा है, मीन दे रखा है, मीडियन कैसे कैलकुलेशन करना, तो इसी में से आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये है,
फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स, हाँ ये मैं आपको ये जो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हैं ये आपको मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ होती है। ये डिस्ट्रीब्यूशंस को जब हम ग्राफिकली शो करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ एक डिस्ट्रीब्यूशंस बनते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऐसा एक रिलेशनशिप होता है जहाँ पे मीन, मीडियन और मोड जो हैं वो तीनों इक्वल होते हैं। और जहाँ पे असिमेट्रिकल है वहाँ पे आपके पास वो जहाँ वहाँ पे मीन, मीडियन और मोड जो हैं वो इक्वल नहीं होते। ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक फॉर ए ग्रुप ऑफ 200 स्टूडेंट्स, द मीन मार्क्स एंड मीडियन मार्क्स वर फाउंड टू बी 55.60 एंड 52.4. व्हाट इज द मॉडल मार्क? तो मोड आपको कैलकुलेट करना है इस केस में। तो हम सिंपल फार्मूला लगाएं, हमने पढ़ा है अभी कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मीन इज इक्वल टू 50.60 एंड मीडियन इज इक्वल टू 52. अप्लाइंग वेट, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। लो जी, मोड आ गया जी आपके पास 46। तो ये फार्मूला हम भी यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत कम हो। अब मान लीजिए इफ़ y इज इक्वल टू 2 प्लस 1.5x एंड मोड ऑफ x इज 15, व्हाट इज द मोड ऑफ y? तो ये तो हमारा इक्वेशन। तो y m इज इक्वल टू 2 और 1.5 इंटू एक्स की जगह 15 पुट कर दिया तो विच इज इक्वल टू 24.50. सो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मोड? मोड इज ओनली सुटेबल एवरेज फॉर एग्जाम्पल मॉडल साइज ऑफ गारमेंट, शूज़ एट्सेट्रा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ट्रेंड, फैशन, कौन सी गारमेंट, कौन सा साइज़। अब जैसे शूज़ है, शूज़ में आपके 6 और 7 शूज़ जो है वो हिमाचल के लिए जो है वो के लोगों का जो प्रेफर करते हैं, लेकिन हरियाणा के लोगों के लिए वो सूटेबल नहीं होगा। इसलिए जितने भी बिजनेसमैन हैं वो ये देख लेते हैं कि कौन सा शूज़ और कौन सा नंबर जो है वो ट्रेंड में है, उसी के ऑर्डर जो है उसी के अकॉर्डिंगली ऑर्डर लेते हैं। तो तभी तो क्या करते हैं कि जो फैक्ट्री वाले होते हैं वो कहते हैं जी 6 और 7 के अगर आपके पास आप 10 पेयर चाहते हैं तो एक आपको 3 का भी मिलेगा, एक आपको 10 साइज़ का भी मिलेगा। लेकिन आपको डिसाइड करना होता है इसी के बेस के ऊपर कि कौन सी आइटम्स को मैं का ऑर्डर करूं जिसकी वजह से मेरा ये वर्किंग कैपिटल हो ज़्यादा उसमें टाई ना हो। तो इसलिए हम उसकी मोड की एप्लीकेशन करते हैं। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज़, ये हमने अभी डिस्कस किया। इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, बिल्कुल की अभी हमने आपसे साथ। सो लिमिटेशंस साथ साथ हम डिस्कस कर रहे थे। इन केस ऑफ बायो मॉडल जहाँ 2 मल्टी मॉडल सीरीज होती हैं, मोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो उसके लिए हमने फार्मूला बताया आपको 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, कंबाइंड मोड ऑफ 2 और मोर सीरीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो यहाँ भी हमने फर्दर कैलकुलेशंस नहीं करी हैं। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज। यस, अभी हमने देखा 3 ही फिगर्स नहीं, F1, F0 और F2 के ऊपर बेस था। सारी इंफॉर्मेशंस को हमने जैसा कि हमने मीन में लिया था वैसा नहीं है। इट्स वैल्यू इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड विद द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। देखिए यहाँ पे अगर क्लास इंटरवल आपके इक्वल नहीं है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20, यहाँ तो हमारे इक्वल थे, अगर वहाँ इक्वल ना हो तो हमें फिर दिक्कत हो जाएगी मॉडल क्लास की कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये था हमारा मीन, मीडियन एंड मोड